My name is Kishore Kumar Banerjee, and this is a demo video. And in this video, we will learn about chemical reactions and equations. This is a chapter of class 10th. Okay. Chemical reactions and equations. Okay. So before this, we need to understand one thing: that what is change? Change is process in which final state of a substance differs from the initial state. Process, right? In which the final state of a substance differs from the initial state. Okay, the process in which the final state of a substance differs from the initial state. Okay, now examples are melting of ice, rusting of iron. Okay, you name it. Uh, for example, you can write combustion. Combustion means burning. Okay. Now the thing is that this final state and the initial state is different, right? We'll see how is it different, right? There is a change, right? There is a difference between the final state and the initial state. So there has been change. And what kind of change is that? That we can classify. Okay. And based on that change, we can classify those things. So that change may be physical or chemical. Okay. It may be physical or it may be chemical. Now the physical change means there will be change in the physical properties. Physical properties like physical properties like shape, size, state. Okay. For example, melting of ice. Okay. Melting of ice, boiling of water. Right. These are the physical changes. Generally, it is reversible. Right. Whereas, if we consider the chemical changes, okay, the reaction, what we understood that change is a process in which the final state and the initial state of a substance is different, so there is a change that has been done. Now the change can be physical or chemical, right? If the change is physical, then it is known as physical reaction or physical change, and if the change is chemical, then the change is known as chemical change. Why is it known as chemical change? Because there is a change in the chemical composition. Okay. Now, like the properties are shape change, size change, and state change. Here the properties will be state change may be seen
Change in chemical composition, we have discussed about it. Temperature or heat. Okay. So this triangle, this denotes heat. So this heat may be released. If it is released, it is known as exothermic. Thermic means heat. And if it is absorbed, this is known as endothermic reaction. Right? Color change. Color change is also seen. Precipitation. What is precipitation? फॉर एग्जाम्पल आपने कुछ रिएक्टेंट्स लिया एक बीकर के अंदर एक्वस फॉर्म में, ओके, एंड यू मिक्सड इट, और आफ्टर सम टाइम्स यू विल सी कि नीचे कुछ लगा पड़ा है, कुछ सेटल डाउन हो गया है, दैट थिंग इज नोन एज प्रेसिपिटेशन. ओके, फॉर एग्जाम्पल कुछ ऐसा एग्जाम्पल लीजिए आप कि एक पानी है, ठीक है, अब पानी में आप कोई ऐसा सब्सटेंस उसमें घोलना चाहते हैं जो पानी में डिजोल्व नहीं होगा, राइट. अब आप घोल रहे हैं घोल रहे हैं घोल रहे हैं बट वो डिजोल्व नहीं हो रहा है, तो एट वन पॉइंट ऑफ टाइम इट विल प्रेसिपिटेट डाउन, ओके, और इट विल सेटल डाउन. वही, ठीक है, वहाँ पे एक्चुअली वहाँ पे प्रेसिपिटेशन बोला नहीं जाता, वहाँ पे सेटल डाउन बोला जाता है. प्रेसिपिटेशन मतलब फॉर एग्जाम्पल ये एक बीकर है, इसमें आपने you took reactant A, you took reactant B, there is a there occurred an process, और यहाँ पे नीचे कुछ बैठ गया. Okay, so this yellow colored thing is a new compound and this C is precipitation. Okay, this C is precipitation. Okay, now up to this we are very much clear, right? Now what is chemical equation? रिएक्शन तो हमने पढ़ा, रिएक्शन कैसे होता है. फॉर एग्जाम्पल A plus B is giving C plus D. Okay, these will be called as reactants. Why will these A and B called as reactants? Because they are reacting. Whereas C and D will be called as products. क्योंकि reactants react करके products produce कर रहे हैं, right? Now, if I give a symbol of this, इसका मतलब क्या है? मतलब जब तक हम heat यहाँ पे सप्लाई नहीं करेंगे A और B अच्छे से रिएक्ट नहीं करेगा. So this is, what is it? Heat. Okay, and this D, if I use this symbol, इसका मतलब क्या? इसका मतलब यह है कि क्या है ये? प्रेसिपिटेट. जो प्रेसिपिटेशन जिसके साथ होता है उसको प्रेसिपिटेट बोला जाता है. सो डी हियर इज द प्रेसिपिटेट. ओके, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे सी के ऊपर ऐसा अपर एरो लगाया है, कैसे? ऐसे. दिस मीन्स दैट्स गैस. ओके, फॉर एग्जांपल ये एक्वस था, ये एक्वस था, ये तो गैस बन गया और ये सॉलिड बन गया. ओके, अंडर दिस यू हैव टू मेंशन द स्टेट ऑफ मैटर. अब एक्वस क्या है? एक्वस देख के डरने की कोई जरूरत नहीं है. एक्वस का मतलब यह है डिसॉल्व्ड इन वाटर. डिसॉल्व्ड इन वाटर. जैसे फॉर एग्जांपल NaCl है, ये क्या है? सॉलिड है. इसको प्लस वाटर अगर कर दिया जाए तो ये NaCl क्या हो जाएगा? एक्वस. ओके, दिस वाज द थिंग. ओके, नाउ एक और बात भी है कि यहाँ पे जैसे हमने देखा A plus B C plus D दे रहा था और C गैस है, तो और एक चीज आपको ये याद रखना है कि केमिकल चेंज का एक प्रॉपर्टी
इवोल्यूशन ऑफ गैस भी है. ओके, कीप इट इन माइंड. नाउ we will see how chemical reactions are balanced, right? How these are balanced. So we will take an example. Okay, so for example we will take this example of Fe plus H2O. Gives, what is it giving? It is giving magnetite Fe3O4 plus hydrogen gas. इसको बोला जाता है मैग्नेटाइट. वाटर देख के आपने एक्वस सोचा होगा, पर यहाँ पे एक्वस नहीं है वाटर. दिस इज इन फॉर्म ऑफ स्टीम. सो गैस. ओके, ये सॉलिड फॉर्म में है. ओके, नाउ जैसे हम, अब बात यह है कि यहाँ पे एक आयरन है, यहाँ पे तो 3 आयरन हो गया. अब यहाँ पे एक चीज गड़बड़ हो गया कि देयर इज लॉ नोन एज कंजर्वेशन ऑफ मास या कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. एनर्जी और मास बोथ कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर कैन इट बी डिस्ट्रॉयड. अब ऐसा आउट ऑफ थिन एयर कैसे क्रिएट हो गया? तो ये गलत है फिर इक्वेशन. तो इसको सही करना पड़ेगा. अब इक्वेशन सही करने के लिए लेट्स वी हैव टू बैलेंस. यहाँ पे भी 3 करना पड़ेगा. ऐसे बैलेंस किया जाता है. ठीक है, बैलेंस इसीलिए किया जाता है. क्यों किया जाता है? कि हम ये जो कंजर्वेशन ऑफ मास एंड एनर्जी का जो कॉन्सेप्ट है उसको रेफ्यूट ना कर दें, उसको गलत ना ठहरा दें. अगर उसको गलत बोल दिया हमने तो ये हमारा रिएक्शन भी गलत हो ही जाएगा. ओके, सो व्हाट विल वी डू? ओके, ऐसे 2 कॉलम बनाएंगे, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट. क्या है? आयरन है, और क्या है? हाइड्रोजन है, और क्या है? ऑक्सीजन है. राइट. नाउ इन द रिएक्टेंट साइड कितना है? आयरन है, ओनली 1 आयरन. हाइड्रोजन कितना है? 2. ऑक्सीजन 1. राइट. आयरन प्रोडक्ट साइड में 3, ऑक्सीजन 4, हाइड्रोजन 2. नाउ यहाँ पे आयरन को 1, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे भी 3 करना पड़ेगा. सो वी हैव टू नाउ वी मल्टीप्लाई विद दिस. ओके, अब ये तो 2 2 है, इसके साथ कोई छेड़खानी नहीं. 1 4 है, तो इसके साथ इंटू 4 करना चाहिए. इसके साथ जब इंटू 4 किया जाएगा सो 3 आयरन 4 ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के सामने 4. यहाँ पे देखिए कि टोटल 8 हाइड्रोजन हो गया. अब 8 हाइड्रोजन को, यहाँ पे तो 2 हाइड्रोजन है, तो क्या किया जाए? यहाँ पे क्या हो गया? यहाँ पे टोटल 8 हो गया ना. राइट, ये तो रिजल्टेंट हो गया 8. अब इसको भी 8 बनाना है, तो इसके साथ क्या इंटू करना पड़ेगा? इसके साथ अगर इंटू 4 किया गया तो यहाँ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कहाँ है? यहाँ पे है. क्या इंटू करेंगे? 4. तो इसका भी कोफिशिएंट में 4 आएगा. एंड लुक, आवर इक्वेशन is balanced, right? 3 iron plus 4 H2O gives Fe3O4 plus 4 H2. So ये है concept, right? This was the concept behind these things. बात यह है कि आप बोलेंगे कि ये H2O आपने कैसे लिखा, ये कहाँ से आ गया? how did we come to a conclusion कि H2O ही होता है या ऐसा कुछ होता है? So I think so आपके सिलेबस से निकाल दिया गया है atomic numbers and all, but you need to learn those things. Those are basics. मैं आपको ट्रिक बताता हूँ. हा ही वी बे बोकानी ऑक्सीफ्लोनी सोमा अल्सी फोसु कलर पोका. हा ही वी बे बोकानी ऑक्सीफ्लोनी. ओके, हा ही वी बे बोकानी ऑक्सीफ्लोनी सोमा अल्सी फोसु कल पोका. नाउ अब देखते हैं क्या क्या है. ये हा का मतलब होता है हाइड्रोजन,
ही का मतलब हीलियम, ली का मतलब लिथियम, बे का मतलब होता है बेरिलियम, बो का मतलब बोरॉन, का कार्बन, नी नाइट्रोजन, ये ऑक्सीजन, क्लोरीन, क्लो का मतलब, नी का मतलब नियॉन, फिर सोडियम, मा मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सी का मतलब सिलिकॉन, फो का मतलब फास्फोरस, सू का मतलब सल्फर, कल का मतलब क्लोरीन एज यूजुअल, आर का मतलब तो आर्गन होता है, ओ का मतलब पोटेशियम, और का मतलब कैल्शियम। ये आप ये बताएंगे कि ये सब याद करके क्या होगा। ओके, सो वी हैव असाइंड नंबर्स 1 से 20 तक, ठीक है। अब बात यह है कि आपको बोला गया कि यू हैव टू राइट द फॉर्मूला ऑफ कार्बन और हाइड्रोजन। एक कार्बन है, ओके, तो हाइड्रोजन कितने होंगे, ओके, एंड मतलब क्या होगा। सो यू विल लर्न दैट कार्बन 6, राइट। सो 6 कार्बन, 2 एंड 4। अब 2 एंड 4 कैसा है ये भी समझाता हूँ, देखिए। द थिंग इज दैट ये अगर एटम है, ये न्यूट्रॉन, राइट, इसके सामने वाले शेल में ये 2 इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट कर सकता है, उसके बाद वाले शेल में यहाँ पे 4 है इसीलिए 4। एक्चुअल एकोमोडेशन कैसे होता है, एक्चुअल एकोमोडेशन ऐसे होता है 2 8 8 18 so on, okay। so now the rule of octet says कि हर एक एलिमेंट चाहता है कि उसका जो बाहर वाला शेल है दैट रिमेन्स फुलफिल्ड, दैट कंप्लीट इट्स ऑक्टेट, ओके। तो यहाँ पे इसको ऑक्टेट फुलफिल करने के लिए कितना चाहिए, देखिए आप अच्छे से, कितना चाहिए 2 8 8 18, राइट। तो 2 8 तो कितना चाहिए, और 4 चाहिए, ओके। तो या तो +4 हो सकता है या -4 हो सकता है, ये +4 करेगा, ओके। इस केस में इस कार्बन के इस प्रॉपर्टी को हम कैटेनेशन बोलते हैं, कीप इट इन माइंड, ओके। आप जब हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे, पूरा केमिस्ट्री का एक ब्रांच है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, दैट इज ड्यू टू दिस ओनली कि कार्बन का 4 वैलेंसी है, दैट इज द रीजन इट कैन मेक बॉन्डिंग विद n नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ओके। तो यहाँ पे 4 है, तो ये क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा और क्या बनाएगा, सी का जो वैलेंसी है वो क्या है 4, और हाइड्रोजन का वैलेंसी तो 1 है, ठीक है। सो ये क्रिस क्रॉस होता है, तो सी के पास 1 आ गया और एच के पास 4 आ गया, सो इट इज ऑल्सो नोन एज CH4, जो आप आगे हाइड्रोकार्बन में पढ़ेंगे जिसको मीथेन बोला जाता है। सिमिलरली लेट्स टेक द केस ऑफ वाटर, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का कितना है, ऑक्सीजन का है 8, सो 8 ऑक्सीजन, यहाँ पे क्या होगा 2 एंड 6, राइट। इफ 2 एंड 6 फिर न्यूट्रॉन, फिर उसके ऊपर उसके बाहर वाले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, फिर उसके बाहर वाले शेल में 3 4 5 and 6 electron. How much more electron does it needs? 2 electrons. So what will it do? It will take the help of oxygen, okay। so इसका वैलेंसी क्या है, इसका वैलेंसी है 2, राइट। वैलेंसी का मतलब क्या है, बॉन्डिंग कैपेसिटी। जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के पास 2 हाथ है, वो 2 हाथ से कुछ भी कर सकता है, जैसे कार्बन के पास 4 हाथ है, राइट। ऐसे ही आप ये भी समझ सकते हो कि वैलेंसी का मतलब हाथ, ओके। सो कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम, ये बोल सकते हैं, बाइंडिंग कैपेसिटी और कंबाइनिंग कैपेसिटी, ओके। सो 2 6 ऑक्सीजन का कुछ ऐसा होगा, यहाँ पे 2 वैलेंसी आया 2, सो ऑक्सीजन का वैलेंसी 2 है, हाइड्रोजन का वैलेंसी 1 है, तो क्रिस क्रॉस OH2। बट ये थोड़ा गलत नहीं लग रहा है कि OH2, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि पहले जो पॉजिटिव होता है वो आता है, फिर नेगेटिव आता है, ठीक है। जो 2 इलेक्ट्रॉन ये गेन करेगा या आपसे छीनने की कोशिश कर रहा है, जो छीनना चाहता है वो क्या होता है, वो बुरा इंसान होता है, राइट। जो देना चाहता है वो अच्छा इंसान होता है, बुरा इंसान को हम क्या बोलते हैं, नेगेटिव इंसान है, राइट। सो हियर द ऑक्सीजन इज आल्सो इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर, इट इज नेगेटिव, ओके। छीनना चाहेगा,
तो इसको बाद में रखेंगे, पहले अच्छे आदमी को रखेंगे, अच्छे इंसान को रखेंगे। अच्छा इंसान कौन है? हाइड्रोजन है अच्छा इंसान, तो पहले हाइड्रोजन आएगा फिर ऑक्सीजन आएगा। सो इट इज समथिंग लाइक, क्या होगा, अच्छा इंसान पहले आया, फिर बुरा इंसान आ गया, अच्छे इंसान का वैलेंसी 1, बुरे इंसान का 2, do this crisscross, you will get H2, right? This was easy. इसमें और एक बात है, ओके, बात यह है कि मैग्नीशियम 12, मैग्नीशियम तो 12 है ना, तो इसका कितना होगा 282, राइट, यही होगा। ओके, नाउ इसमें आपको फिर पढ़ना पड़ेगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p, हाँ, ओके। सो ये यू कैन से दिस इज नियरली कंप्लीट, इट हैज कंप्लीट, मतलब ये स्टेबल है, बट ये बॉन्ड बना लेता है, यू विल सी दैट इट मेक्स बॉन्ड लाइक समथिंग लाइक MgO2, इसका वैलेंसी 2 है, ओके। इसको ये दिस इज समवट स्टेबल। नाउ फॉर एग्जांपल एल्यूमिनियम है और ऑक्सीजन है, एल्यूमिनियम का क्या है 13 और ऑक्सीजन का क्या है, ऑक्सीजन इज टेल मी 8, राइट। तो ये 13 मतलब 2 8 3 और यहाँ पे 8 मतलब 2 6। नाउ comes an interesting part about it. Wait a minute, just let me adjust this camera. Okay. Wait a minute. Now it is somewhat clear. So अब ये एल्यूमिनियम का 283 है, ओके। अब आप बोलोगे 283 जो है ये 5 इलेक्ट्रॉन गेन कर देगा, नहीं, इट कैन गेन 5 इलेक्ट्रॉन और इट कैन लूज 3 इलेक्ट्रॉन। थर्मोडाइनमिकली ज्यादा स्टेबल क्या है, ज्यादा फेवरेबल क्या है, आपको 5 इलेक्ट्रॉन्स छीनना है या 3 इलेक्ट्रॉन्स बिखेर देना है और किसी को दे देना है, बट इट्स मोर इजियर दिस, राइट। 3 दे देना बहुत आसान है, 5 लेना उससे मुश्किल है, राइट। सो here the valency will be -3 for this timing, you consider it as 3, okay। और ऑक्सीजन का तो 2 हमको पता ही है, so एल्यूमिनियम का 3 है एंड ऑक्सीजन का 2 है, तो फिर क्रिस क्रॉस Al2O3 is the name of the compound, ऐसे होता है, okay। In the next video we will discuss some more things about balancing, we will balance some reactions, okay। और हम और कुछ पढ़ेंगे और उसमें हम कुछ रिएक्शंस के टाइप्स को देखेंगे कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है, ओके, व्हाई इज इट टेकिंग प्लेस, व्हाई इज इट हैपनिंग, ओके।